Very good morning, class 12. Hope you all are fit and fine at home. Children, today we are going to start lesson number 7, Evans Tries an O Level, written by Colin Dexter. Now, the dramatis personae means the character which are in the play. There is one examination board, like you have CBSE examination board. Similarly, they have the secretary of the examination board, governor of HM prison in the Oxford town, James E. Vance. Now, this is a prisoner. एक प्रिजनर है, भगौड़ा है, जेल से भाग जाता है. उसका कहना है कि कोई ऐसी जेल नहीं है जो उसको बंद करके रख सकती है. मिस्टर जैक्सन है, ही इज़ अ प्रिजन ऑफिसर. रेवरेंड एस मैकलीरी, एन इनविजिलेटर. मिस्टर कार्टर, डिटेक्टिव सुपरिटेंडेंट. मिस्टर बेल, डिटेक्टिव चीफ इंस्पेक्टर. राइट. अब थोड़ा सा आपको बताना तो पड़ेगा ही, तभी आपको पता चलेगा. राइट. सो आई विल रीड आउट few pages. Attend to your book. It was in early March when the secretary of the examinations board received the call from Oxford prison. It's a slightly unusual request. Try to help us. Just the one fellow you see. That is it. Chap called Ivan started night classes in O-level German last September. He is dead keen to get some sort of academic qualification. Is he any good? He was the only one in the class, so you can see he had individual tuition all the time. Really would have cost him a packet if he had been outside. Well, let's give him a chance, shall we? That's jolly kind of you. What's exactly the procedure now? Oh, don't worry about that. I'll be sending you all the forms and stuff. What's his name, you say? Evans? James Roderick Evans. It sounded rather grand. Just one thing, Governor. He is not a violent sort of fellow, is he? I don't want to know his criminal record or anything like that, but no, there is no record of violence. Quite a pleasant sort of chap, they tell me. Bit of a card, really. One of the stars at the Christmas concert. Limitations, the sort of thing. Mike Yarwood stuff. No, he's just a congenital kleptomaniac. That's all. The governor was tempted to add something else, but he thought better of it. He would look after that particular side of things himself. Presumably, said the secretary, you can arrange a room. Where? No problem. He is in a cell on his own. If you have no objection, he can sit the exam in there. And we could easily get one of the parsons from St. Mary Mag's to invigilate it. That's fine, yes. They seem to have a lot of parsons there, don't they? The two men chucked good naturedly, and
the secretary had a final thought. At least there is one thing, you shouldn't have much trouble keeping him incommunicado, should you? The governor chuckled politely, once more reiterated his thanks, and slowly cradled the phone. Evans. So these two pages, first see, जब वो कहता है कि ये प्ले खुलता है, अर्ली मार्च का महीना है और इम्तिहान जो हैं एग्ज़ामिनेशन बोर्ड, वहाँ से एक अफसर की कॉल आती है और ये कॉल आती है ऑक्सफोर्डशायर, ऑक्सफोर्ड प्रिजन। इस जेल का नाम, जैसे तिहाड़ जेल है हमारी दिल्ली की, इसका नाम HM प्रिजन है। और यहाँ का जो गवर्नर है, सबसे बड़ा अफसर है जिसके देख रेख में ये जेल चलती है, राइट, उसको गवर्नर कहा गया है, गवर्नर। ठीक। उधर से फ़ोन आता है, गवर्नर उठाते हैं, कहते हैं हेलो कौन? वो कहता है मैं सेक्रेटरी ऑफ इम्तिहान का बोल रहा हूँ, एग्ज़ामिनेशन बोर्ड से सेक्रेटरी बोल रहा हूँ। हाँ जी बोल लो। कि हाँ भाई, कोई है कैंडिडेट, बच्चा है आपके यहाँ जो इवेंस नाम का है? इवेंस। उन्होंने कहा है जी है। हाँ एक लड़का है तो सही जेल के अंदर, वो जेब काटते हुए पकड़ा गया था, राइट, उसको चोरी करने की आदत है। उसने जर्मन O लेवल का पिछले सितंबर में एग्ज़ाम भरा था, फॉर्म भरा था। वो कुछ एकेडमिक क्वालिफिकेशन चाहता था। उसने ट्यूशन भी जर्मन की लगा के रखी है, एक ट्यूशन वाला भी उसको पढ़ाता होता था, अक्सर जेल में भी आया करता था वो ट्यूशन वाला उसको पढ़ाने के लिए घंटा भर। ठीक। वो कहता नाम क्या पूरा? उसका नाम है जी जेम्स रॉड्रिक इवेंस। अच्छा, तो उसका क्या जेल का आफ्ता है, जेल का कैदी है, क्या वो इम्तिहान दे सकता है? उन्होंने कहा हाँ। सेक्रेटरी ने कहा क्यों नहीं, अब मैं चेक कर रहा था, उसका नाम आया, अब उसका जून जुलाई में एग्ज़ाम होना है तो तभी आपको कॉल किया है, तो ये कैदी दे सकता है अपना इम्तिहान। उन्होंने बातचीत करी, कैसे करें फिर इसका? तो कहते हैं कि उसको पूछा उसने कहाँ है वो, उसने कहा उसको सॉलिटरी कन्फाइनमेंट है, एक कल्ली जेल में बंद कर रखा है और इस जेल में और कोई कैदी नहीं है। तो कहता बस बढ़िया। सेक्रेटरी कहता फिर तो बहुत बढ़िया, वही सेल को तुम अपना एग्ज़ामिनेशन सेल बना लेना, हम उसको एक नंबर दे देंगे, एग्ज़ामिनेशन सेंटर नंबर दे देंगे आपका, आपको कोई दिक्कत नहीं होएगी। और आपको तो एक काम करना है, आपको ज़रा ये तो बताओ ये कैसा वायलेंट बंदा तो नहीं है? अब यहाँ पर छुपाया बच्चों, यहाँ पर गवर्नर ने छुपाया कि वो एक भगौड़ा है, पिछली 3 जेलों से भाग चुका है, कोई भी जेल में वो रहता नहीं है, पकड़ नहीं पाते उसे ढंग से, वो निकल जाता है सुरंग बना के या छत से या दीवार से, जैसे भी। अब ये बात उसने बताई नहीं, ये ज़रूर बताया कि वो बहुत बढ़िया बंदा है, जॉली टाइप का बंदा है, खुश मिजाज बंदा है। और आपने सुना होगा क्रिसमस के आसपास बड़े म्यूज़िक कॉन्सर्ट करता है, बहुत तगड़ा बंदा है। लेकिन चोरी करने की एक ऐसी आदत है, चोरी की ज़रूरत नहीं है उसको। अब सपोज़ आपके पास एक पेन 500 रुपये वाला नहीं है, आप कहीं देखते हो, आपके पास बथेरे पेन है, ज़रूरत नहीं है, बट फिर भी आप देखते हो जब नज़दीक कोई नहीं है उस डेस्क से उठा लेते हो पेन। तो ये जानबूझ के चोरी नहीं की, ये एक दिमागी बीमारी होती है, एक दिमागी बीमारी होती है जिसके कारण बंदा टेम्प्टेड टू स्टील द थिंग नियर एट हैंड, जो भी नज़दीक में कोई चीज़ पड़ी होती है उसको वो चुरा लेता है। ऐसे बंदे को क्लेप्टोमैनियाक कहते हैं। आया था ना वर्ड रीडिंग करते समय, आपको पता होगा, क्लेप्टोमैनियाक। ठीक है।
और जिसको ये बीमारी है उसको क्लेप्टोमानिया कहते हैं, और इस बीमारी को क्लेप्टोमानिया कहते हैं, क्लेप्टोमानिया। तो उसने कहा कि चलो वही ये बात है, और इस कारण वो पकड़ा गया। वैसे तो बहुत बढ़िया। कहता फिर आपका तो काम चल जाएगा, आप एग्ज़ामिनेशन सेंटर वहीं बनाओ, आपको डेट दे देंगे, फाइनल हो जाएगा। एक काम आपको पार्सन का अरेंज करना है आपने खुद, मतलब एग्ज़ामिनेशन का एक पर्सन बोले तो इन्विजिलेटर, जो 3 घंटे इम्तिहान में उसकी इन्विजिलेशन ड्यूटी देगा, वो बड़ा इजी है। हम रास्ता बता देते हैं, ये फ़ोन पे ही बात हो रही है। वो रास्ता ये है कि आपके पड़ोस में ही एक सेंट मैरी मैग्स स्कूल है, ये एक इंस्टीट्यूशन है सेंट मैरी मैग्स। बस वहाँ से आपने फ़ोन पर एक बंदे को अरेंज कर लेना है, हायर कर लेना है, और उसकी तनख्वाह दे देनी है। वो अपना उस दिन आ जाएगा, इम्तिहान कंडक्ट हो जाएगा और चले जाएगा। तो ये सब बातें चीतें होती रही। ये शुरू का नाटक में है कि यहाँ पर ये बातचीत होती है। ये बातचीत दौरान दोनों के है। वो ऑफिस में बैठा है गवर्नर अपने जेल के, राइट, सबसे बड़ी जेल है ऑक्सफोर्ड शायर की, और ऑक्सफोर्ड HM प्रिजन नाम है, दोबारा बता दिया आपको। और वो फ़ोन जो आता है वो सेक्रेटरी का आता है एग्ज़ामिनेशन बोर्ड। फिर दोबारा बोला कि जिसे याद हो जाए, वो एक सेक्रेटरी है एग्ज़ामिनेशन बोर्ड का, वो सिर्फ मालूमात करता है इस लड़के के बारे में। ईवेंस नाम है, जेम्स रॉड्रिक ईवेंस इसका नाम है। और गवर्नर से कहता है कि क्या वो इम्तिहान दे सकता है। उन्होंने कहा हाँ दे, क्यों नहीं दे सकता, वो भी इम्तिहान दे सकता, उसको भी राइट है। जैसे तुमको कुछ राइट्स हैं और ड्यूटीज़ हैं, ऐसे उसको भी राइट है, वो सिटीज़न है जर्मन का, ठीक है। तो उसने बताया बातचीत करके कि हाँ ये पढ़ रहा था जब इसको जेल हुई, इसने चोरी की, इसकी आदत है, चोरी कर लेता है, क्लेप्टोमैनियक है। फिर उससे वो पूछता है कि कहीं वायलेंट तो नहीं है। उसने कहा नहीं जी नहीं, ये वायलेंट बिल्कुल भी नहीं है, बहुत मजाकिया है, मस्त बंदा है। फिर उसको वो सारा बताता है कि एग्ज़ामिनेशन सेंटर को किस तरह अरेंज करना है, ठीक है। आपको भी पता चल गया, ठीक, कि एक छोटे से सेल में वो अपना टेबल टूबल लगा लेंगे, 2 कुर्सी रख लेंगे, और यहाँ पर कोई नहीं, एक सेंट मैरी मैग्स से वो हायर कर लेंगे इन्विजिलेटर, और उसको ड्यूटी के लिए भेज देंगे। इम्तिहान का जो ऑफिस है, एग्ज़ामिनेशन बोर्ड है, जब वो फाइनल कर देगा तो वो एक पैकेट आपको स्पीड पोस्ट से या जिस चीज़ कोरियर से कर देगा। उसमें क्वेश्चन पेपर होंगे, सब कुछ होगा, और वो आप तक पहुंचा दिए जाएंगे, ठीक है। तो आज मैंने आपको सिर्फ ओपनिंग पढ़ाई है, स्टार्टिंग ओपनिंग, राइट। अब थोड़ा सा आप भी कष्ट करो, इनको रीड करो। कम से कम नेक्स्ट सेशन में आई विल डू नेक्स्ट 4 पेजेस, आई विल एक्सप्लेन यू next 4 pages as I have explained you 2 pages today, right? So you are going to read this properly and be prepared for the next one, right? Now you will have a suspense कि आगे क्या होगा, right? Must create interest बेटा, must do reading side by side। एग्ज़ाम के पास फिर इतना टाइम नहीं होगा कि आपके पास इतना समय हो कि आप पूरा चैप्टर पढ़ सकें। सो इट इज़ अ रिक्वेस्ट ओनली टू यू। और कभी अगर वीडियो नहीं आए, देखो फ़र्क कुछ नहीं है इसमें। फ़र्क ये है कि बस ज़रा फ़ोटो आती है, रिकॉर्डिंग में ये होता है सिर्फ आवाज़ आती है। बेहतर ये होगा अपनी बुक अपने पास रखा करो, और जब मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ तो आपको ध्यान से सुनना चाहिए। जो चीज़ ना सुनाई दे, होता है, मेरे साथ भी होता है, आपके साथ भी होता होगा, एक बार सुनने में कई चीज़ें क्लियर नहीं होती, तो दोबारा सुनो, और दोबारे में वो क्लियर भी हो जाती है बात, वो नाम और वो चीज़ दिमाग में भी रहती है। सो आई होप आप लोग समझ रहे हैं सर की टीचिंग्स, राइट, सर की प्रीचिंग्स, सर के सरमन। टाइम पे आपको मॉरल वैल्यूज़ भी मिलती हैं, एथिकल वैल्यूज़ भी मिलती हैं, आपको बताया जाता है कि क्या चीज़ अच्छी है क्या बुरी है। सो प्लीज़ ये ज़रा ध्यान दो। और ये है इम्पोर्टेंट प्ले का नाम है ईवेंस ट्राइज एन O लेवल,
इसको लिखा है कॉलिन डेक्स्टर ने। ठीक है चिल्ड्रन, थैंक यू and have a nice day. Please do give a reading. Thank you.